Good morning, everyone. How was your exam yesterday? Okay. So we'll start with the ostrich phase, that is the bony fish. It is a bony fish. Now, the different characters of the bony fish we are need to go through. So these ostriches of the bony fish can be their habitat or where they live. This can be two types. They can be either marine or they can be freshwater. In both the habitat, they can survive. Now their endoskeleton. Now when we talk about their endoskeleton, the endoskeleton, again, it is of two types. It can be cartilaginous. So how come it becomes cartilaginous if it is bony? Now it is cartilaginous during their embryonic stage, or it can be bony in their adult stage. No voice. So both options, it can be there. So that's about it. That is about their endoskeleton. Now these bony fishes are basically ectothermic. What do you mean by ectothermic? They are ectothermic. Ectothermic means cold-blooded. That is poikilothermal. They are cold-blooded, poikilothermal. Now their caudal fin. Caudal fin means their back fin. Their caudal fin is basically homocersal. Means it is divided into two equal lobes. I show you how it is actually happening. Their caudal fin is homocersal. What do you mean by homocersal? Homocersal means that it is divided into equal lobes. How come? Now if I consider a fish, bony fish like this, now this is the caudal fin. Now it is divided into two equal halves. First half, second half. So this is the caudal fin, how it is being divided. Now their exoskeleton. Now their exoskeleton, that is their their exoskeleton is basically of three types. That is their scales, what their scales are made up of. The scales can be three types: cycloid, ctenoid, or ganoid. It can be cycloid, ctenoid, or glanoid. It is nothing but these are all the scales which are present externally. Okay. Now you are asked, or it has been asked previously, the scales are the derivative of which germinal layer. The scales are the derivative of mesodermal origin. It is mesodermal origin, because we all know the germinal layers are of three types: ectoderm, mesoderm, and endoderm. The scales are of mesodermal origin. Now, till here, is there any problem right now? Hello? No doubt, sir. Okay. So, this is about their exoskeleton, habitat, endoskeleton, their fin structure, and what is the derivative of this exoskeleton. Now we are going to go through the next phase of this ostrich, that is their mouth
digestive tract, cloaca, everything. Okay. Now, now the mouth, basically, if you see any bony fish, their mouth is terminal position. How come the terminal position? Now, if you see a fish, this is the terminal position. This is the terminal position. So the mouth is in the terminal position. Okay, you can see it. It is in the terminal end of their body. Now the digestive system. When we talk about their digestive system, the bony fish's digestive system is basically continues till anus. Means if I consider this is the mouth, see this, I'll draw again another picture. If you consider this is the mouth and this is the anal end, the digestive system will extend from mouth to anus. Got my point or not? The digestive system extends till anus, from mouth to anus. Okay. Now, cloaca. What is the cloaca? Anyone? What do you mean by cloaca? What is cloaca? Genital tract. End of digestive system. Now, properly the definition should be, it's a common opening for urinary system and reproductive system. That is called cloaca. In frog also you will have cloaca itself. That means they have a single opening for urination and single opening for the same opening for their reproduction. So that is called a cloaca. This cloaca is not present over here. It is absent. Cloaca is absent in bony fishes. So that's another point. Another point will be their external layer. External layer means what? External layers are known as the nostrils, right? We all know this. है ना? So their external layers, which is known as the nostril, it is present dorsally. What do you mean by dorsal? What do you mean by dorsal? Top part. Top part or the upper part? Top or the upper part. That is called the dorsal. Dorsally located external layers. Swim bladder or air bladder, that is not present. Swim bladder or air bladder, it is not present, it is absent. Okay. Now gills are present, and a lot of time a question came about regarding gills. How many pair of gills are there and whether these gills are covered or not. There are 4 pairs of gills. There are 4 pair of gills and it is being covered by operculum. Covered by operculum. Operculum is nothing but a thin membrane-like structure which is present over the gills. That is called an operculum. Heart. When we talk about the heart of bony fishes, heart is basically 2-chambered. Heart is 2-chambered. 2-chambered means, I have already mentioned 2-chambered means 1 auricle and one ventricle. Okay, so this is all about the character still heart. Now one more thing is very important, whether there will be sinus venosus or conus arteriosus. I have mentioned regarding sinus venosus and ना एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है, बोनी फिश में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है, इट इज एब्सेंट. ओके, एयर ब्लैडर, सॉरी, इट इज प्रेजेंट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट. Now when we talk about
the heart system. With this heart system, there will be one more question which is asked, whether they have sinus venosus or conus arteriosus. I have mentioned about sinus venosus. What is sinus venosus? Anyone? Which is not present in us. It is not present in us. So what is sinus venosus? I'm waiting for the answer. What is sinus venosus? What is sinus venosus? Heart is words. Didn't I mention about sinus venosus before? Where I have taught regarding chondrichthyes, I told the sinus venosus and conus arteriosus are quite well developed over there. So what is that? I mentioned also what is that. Huh? In humans, heart chamber. It is not about humans. Sinus venosus and conus arteriosus is not present in humans. First thing. Just my precise question is, what is sinus venosus? Tell me that. Huh? वॉइस मेरा नहीं सुनाई में दे रहा है, तुम लोगों का भी नहीं देता है, ठीक है? जब कोई क्वेश्चन कर रहा हूं उसको चुपचाप बैठ के मैसेज करना बंद करो. साइनस वेनोसस या कोनस आर्टेरियोसस क्या है, मैं ये क्वेश्चन पूछा हूं. सो व्हेन अ टीचर आस्क यू अ क्वेश्चन, आइदर यू रिस्पॉन्ड वोकली आई डोंट नो और डोंट गूगल इट आउट, बिकॉज गूगल विल नॉट गिव यू द एवरी आंसर ऑफ इट. साइनस वेनोसस क्या है? What is sinus venosus? Tell me. कोई आंसर नहीं, चुप. क्या है बताओ? नहीं, मैं म्यूट नहीं किया हूं, ये अनम्यूटेड है. क्या है साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस क्या है? These are the additional chamber of heart. एडिशनल चेंबर ऑफ हार्ट कहाँ पे रहता है? ये क्या है? ये एडिशनल चेंबर ऑफ हार्ट क्या है ये? हाँ, साइनस वेनोसस बेसिकली एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, where it is present in left and right ventricle. ये होता है साइनस वेनोसस. और कोनस आर्टेरियोसस क्या है? कोनस आर्टेरियोसस कोनस आर्टेरियोसस क्या है? गूगल करो जल्दी, गूगल ही उससे वही है तुम लोगों का. कोनस आर्टेरियोसस क्या है?
ये एट्रियम में रहता है. Left It is and right present in the atrium. It is present in the right atrium. So these two features of sinus venosus and conus arteriosus is present in your bony fishes, which is not present in us. Okay? किडनी के बारे में बात करते हैं. किडनी होता है मेसोनेफ्रिक. इसके बारे में भी मैं बोला था. व्हाट डू मीन बाय मेसोनेफ्रिक किडनी? हम लोगों का मेसोनेफ्रिक है या मेटानेफ्रिक है? हाँ. What kind of kidney do we have? Do we have mesonephric kidney or metanephric kidney? बताओ भाई. When you talk about a certain teacher, the teacher has the right to talk about you, right? So I'm asking you, what is mesonephric kidney? So now develop Mesonephric kidney is a poorly developed organ, poorly developed kidney, which is not a proper functional kidney. Mesonephric kidney is not properly functioning kidney. हो गया किडनी. तो किडनी के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है वो भी जानना पड़ेगा. इसका चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट, चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट बोनी फिश का होता है क्या? अमोनिया. इट इज अमोनिया, चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट. क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व हम लोगों में होता है 12 पेयर, लेकिन फिशेस में होता है 10 पेयर, 10 पेयर. जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो क्रेनियल नर्व्स के बारे में बहुत कुछ जानेंगे. बेसिकली क्या होता है क्रेनियल नर्व. ओके, तो बेसिकली हम लोग ये जान के रखो, ये चीज कम्स अंडर नॉट पैरासिम्पैथिक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है क्रेनियल नर्व्स, जो नॉर्मली ह्यूमंस में 12 पेयर्स होते हैं, फिशेस में ये 10 पेयर होते हैं. लेकिन पहला 10 पेयर फिश हो या रैबिट हो या ह्यूमंस हो, सबका एक ही रहता है. हम लोगों में जो एक्स्ट्रा 2 पेयर रहता है 11th एंड 12th, वो हम लोगों में एक होता है स्पाइनल एक्सेसरी, और 12th वाला जो होता है उसको बोलते हैं कि हाइपोग्लॉसल. तो ये 2 एक्स्ट्रा पेयर हम लोगों को क्रेनियल नर्व रहता है, ये 2 एक्स्ट्रा पेयर इन लोगों में नहीं रहता है. ठीक है. लैटरल लाइन के बारे में पूछते हैं. लैटरल लाइन क्या बोला था? व्हाट इज लैटरल लाइन? लैटरल लाइन क्या होता था? receptor क्या होता है? sensory organ. इस काइंड ऑफ अ सेंसरी ऑर्गन में, इसके बारे में बोला था, अगर कभी भी पानी में रिपल्स आ गया या कुछ भी आता है तो ये लैटरल लाइन उसको परसीव करता है. परसीव करने के बाद वो जगह से वो हट जाता है टू अ सेफर प्लेस. तो वो जो सेंस करता है वो लैटरल लाइन ही करता है. ये लैटरल लाइन बोनी फिश में काफी अच्छा डेवलप्ड होता है. इट इज वेल डेवलप्ड. इट इज वेल डेवलप्ड लैटरल. फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसका? अंदर होता है या बाहर होता है? हाँ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. तो अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये फर्टिलाइजेशन का मीडियम क्या है? वाटर. ओके, द मीडियम इज वाटर. ओके, और ये अंडा देता है या लाइव यंग वंस प्रोड्यूस करता है? बोनी फिश अंडा देता है या लाइव यंग वंस ऑफस्प्रिंग देता है? एग देता है. तो एग लेइंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, एग लेइंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं? ओविपेरस या विविपेरस?
Oviparous. Oviparous. So these are oviparous animals which are egg laying animals. And very important point यहाँ पे point attach करना है, वो है कि इसका डेवलपमेंट क्या होता है. इसका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. इसका मतलब क्या है, इसका कोई लार्वल स्टेज नहीं रहेगा, इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज नहीं रहता है. गॉट माय पॉइंट. मतलब जैसे ही जुवेनाइल फॉर्म, अंडा से जैसे अंडा फूटेगा वही से वो जुवेनाइल फॉर्म होगा. जुवेनाइल फॉर्म से डायरेक्टली वो एडल्टहुड में चला जाएगा. जुवेनाइल फॉर्म के बाद कोई लार्वल फॉर्म नहीं होता है, इसका कोई लार्वा नहीं होता है. तो उस प्रकार का डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट. क्लियर? ठीक है. इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं. लेकिन पहले इसका स्टिक उठा लेता हूं. अभी तो ऐसा करके तुम लोगों को सेंड करना पड़ेगा. एग्जाम्पल्स ऑफ बोनी फिश. कैरेक्टर्स तो यही है, इसके बाद कैरेक्टर्स कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा. और एक चीज हम लोगों को पूछना है, सिंपल सा, ये मैं बताना चाहता हूं कि वी हैव टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ यू पीपल, राइट? हाँ के ना? हाँ के ना? अरे बात नहीं कर सकता है क्या? अजीब है तो. Yes, sir. पागल है क्या? जब पूछ रहा हूँ यहाँ पे भौंक रहा हूँ क्या? मतलब क्या लगता हूँ मैं यहाँ पे बैठ के? तो क्लासेस में क्या प्रॉब्लम था? क्लासेस में क्या प्रॉब्लम है वो बताओ. ट्रिक बेस में इसलिए कराता था, उसमें सब निमोनिक्स के सहारे इसलिए कराता था कि एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कोई पॉइंट उसमें छूटता नहीं है. और ये एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से नीट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे और एनसीईआरटी बेस के आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा. मुझे अपना सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाना नहीं है, तुम जाके वहां पे एग्जाम में ठीक से टिक करके आओ, यही मेरी इंटेंशन है. उसके बाद मुझे याद रखो ना रखो, मुझे उससे कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे. लेकिन जितना आएगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, उतना ही नहीं कराऊंगा इस चैप्टर से. बेकार का बवंडर करके अपना सब्जेक्ट दिखाऊं, उसका कोई मतलब नहीं है. अगर फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करूं, उसका जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का बात करूं, डायरेक्ट डेवलपमेंट का बात करूं, तो वो एक पूरा एक सेशन निकल जाएगा. तो वो जान के क्या करोगे जब आएगा ही नहीं. ये पहला बात. और दूसरा बात, ये अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा था निमोनिक्स में तो बताने में क्या दिक्कत था तुम लोगों को? निमोनिक्स में और दूंगा नहीं, जैसे करके याद रख सकते हो याद रखो. ठीक है, टॉपिक होगा. एग्जाम्पल्स में कौन कौन सा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे एक एग्जाम्पल है तुम्हारा इसमें जिसका नाम है एक्सोसिटस. चुपचाप बैठे रहने से खुद को ज्यादा ज्ञानी नहीं हो जाओगे. एक्सोसिटस का मतलब होता है ये फ्लाइंग फिश है. तुमको पूछा जाएगा, एक तरफ उसका कॉमन नेम और दूसरा तरफ उसका फिजियोलॉजिकल नेम पूछा जाएगा. एक्सोसिटस. एक होता है हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं सी हॉर्स. और एक होता है बीटा. बीटा होता है तुम्हारा फाइटिंग फिश. ठीक है. एक होता है टेरोफाइलम. टेरोफाइलम को बोलते हैं एंजल फिश. होता है क्लैसियस. क्लैसियस को बोलते हैं मागुर, कॉमन नेम. होता है लैबियो. लैबियो कौन सा होता है? रोहू. और एक होता है कपला. तो ये बेसिक एग्जांपल्स हैं जहां पे तुम लोगों को
ये एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल्स है, इसी से होगा। ठीक है, इसको अलग से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इस एग्जांपल्स को लेकर। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? तुमको इसमें से पूछेगा मेरीन कौन सा है, फ्रेश वाटर कौन सा है और एक्वेरियम फिश कौन सा है। मेरीन होगा ये दो, दीज टू आर मरीन। एक्वेटिक कौन, फ्रेश वाटर कौन सा होगा? फ्रेश वाटर होगा कातला, मागुर एंड रोहू, दीज आर फ्रेश वाटर। ठीक है, और तुम्हारा एक्वेरियम फिश जो होता है वो है फाइटिंग फिश एंड एंजल फिश, ये दो, ये है एक्वेरियम। एक्वेरियम में जो हम लोग रखते हैं या पालते हैं, एक्वेरियम फिश। तो छोड़ के और एक एग्जांपल है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रीडेटर ऑफ मॉस्क्यूटो, उसका नाम है गंबूसिया। दिस इज नोन एज प्रीडेटर ऑफ मॉस्क्यूटो। मतलब कोई भी अगर पॉन्ड में ज्यादा मॉस्क्यूटो आ गए तो गंबूसिया फिश छोड़ने से वो सब मॉस्क्यूटो लार्वा को खा जाता है और मॉस्क्यूटो वहां पे ग्रो नहीं कर सकता है, इसको बोलते हैं गंबूसिया। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑस्टिक फिश और द बोनी फिशेस। ऑलराइट, इसको छोड़ के और एक एग्जांपल तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, उसके भी ऊपर क्वेश्चन आता है, जो उसका नाम है लैटिमेरिया। ये लैटिमेरिया क्या है? लैटिमेरिया को बोलते हैं सिलोकैंथ। ये एक लिविंग फॉसिल है, सबसे पुराना बोनी फिश है। दिस इज द लिविंग फॉसिल, ओल्डेस्ट फिश, सबसे पुराना फिश। और ये इसका अलग सा ही चीज है, ये रेस्पायर करता है गिल्स से। तो ये गिल्स रहता है इसमें, तो गिल्स से ही करेगा। ये शायद इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा, दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक, दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया। फिश और एम्फीबिया के बीच ये कनेक्टिंग लिंक है। क्लियर इतना तक? इतना तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया तुम्हारा ऑस्टिक फिश के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन आता है उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग जाएंगे क्या? अभी हम लोग जाएंगे एम्फीबिया में। एम्फीबिया में क्या क्या होता है देख लेते हैं। क्लास एम्फीबिया, फिशेस कंप्लीट, इसके बाद होगा एम्फीबिया। सो एम्फीबिया हम लोग जानते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल भी है एज वेल एज एक्वेटिक भी है, दोनों जगह पे ये मिल सकता है। और बेसिकली हम लोग इस एम्फीबिया का कौन कौन सा चीज पहले ही हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। पहला, इस एम्फीबिया का जो कैरेक्टर्स हम लोग एसिमिलेट करेंगे, पहला एसिमिलेशन पॉइंट होगा इसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, क्या है इसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट? इसका एलिमेंटरी ट्रैक्ट, और इसका यूरिनरी ट्रैक्ट। ये तीनों का एक कॉमन ओपनिंग चेंबर होता है, हैव अ कॉमन ओपनिंग चेंबर। उसका नाम क्या है? इस कॉमन ओपनिंग चेंबर का नाम क्या है? हाँ बोलो। इस कॉमन ओपनिंग चेंबर का नाम क्या है?
क्लोक क्लोएका। क्लोक नहीं, क्लोका बोलते हैं, क्लोका बोलते हैं। ये तीनों का एक कॉमन ओपनिंग चैम्बर होगा। थर्ड जो पॉइंट या फोर्थ पॉइंट भी बोल सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसका बॉडी टेम्परेचर कैसा होगा। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड का मतलब मैं बोला था, क्या बोला था उसका, एक्टोथर्मल या फिर पॉइकिलोथर्मल, राइट। एक्टोथर्मल और पॉइकिलोथर्मल। इसमें स्केल्स नहीं होते हैं, स्केल्स एब्सेंट होते हैं। एक्सोस्केलेटन में कोई स्केल्स नहीं होते हैं, इट इज एब्सेंट। और ये डाइकोंडाइलिक होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डाइकोंडाइलिक? ये नया टर्म है, डाइकोंडाइलिक। डाइकोंडाइलिक का मतलब क्या है? एनी आइडिया? जानते हो कि नहीं जानते हो? एनी आइडिया ऑफ डाइकोंडाइलिक? नो आइडिया No. सर। ओके, बोल देता हूं। ये अगर ब्रेन है, इसमें दो छेद रहेंगे, दो छेद, और ये दो छेद से वर्टिब्रल कॉलम अटैच रहता है। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? ये जो दो छेद दिखाया हूं, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। कितना दिख रहा है, एक या दो? बोलो। 2 दो। तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल दो है, बोल के इसका नाम हो गया डाइकोंडाइलिक। और ये है हम लोगों का नहीं, वो फिश का वर्टिब्रल कॉलम। तो बाय दिस ऑसिपिटल कॉन्डाइल इट कनेक्ट्स विद द वर्टिब्रल कॉलम। और ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल दो होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डाइकोंडाइलिक। क्लियर? ठीक है, यस सर। ओके। इसके बाद आता है गिल्स। गिल्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? ये जो पॉइंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि गिल्स इसमें सिर्फ लार्वल स्टेज में ही रहेगा। गिल्स इसमें सिर्फ लार्वल स्टेज में रहेगा। एक्सेप्शन है यहाँ पे, लार्वल स्टेज में गिल्स और लंग्स दोनों रहता है। वो एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है नेक्टिवरस। एक एक्सेप्शन है एम्फीबिया में, जहां पे लार्वल स्टेज में गिल्स एज वेल एज लंग्स बोथ आर प्रेजेंट। नेक्टिवरस बोल के एक एम्फीबिया है, वेयर गिल्स एंड लंग्स बोथ प्रेजेंट, दोनों ही है इसमें। That's why it is exception. That's why this exception is very important point, because question comes from exceptions. Okay? इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? एक फ्रॉग को अगर कंसीडर करो, फ्रॉग एक एम्फीबिया है कि नहीं है? फ्रॉग एक एम्फीबिया है या नहीं है? है। है सर। वो फ्रॉग कहां कहां से रिस्पायर करता है, बोलो तो? Gills, lungs, through skin. गिल्स, लंग्स और स्किन। और एक चीज होता है जिसको बोलते हैं बाकोफेरेंजियल कैविटी। क्या बोलते हैं? बाकोफेरेंजियल कैविटी। बाकोफेरेंजियल वर्ड को अगर तुम डिवाइड करोगे तो बाको से होता है बकल कैविटी, फेरेंजियल का मतलब होता है फेरिंज, मतलब उस जगह से भी वो रिस्पायर कर सकता है। अ कैविटी इट्स अ स्पेस, इट्स नॉट एन ऑर्गन, पहले ही बोल देता हूं। इट इज अ स्पेस, इट इज नॉट एन ऑर्गन। उस स्पेस से भी वो रिस्पायर कर सकते हैं। तो कभी भी एम्फीबिया का रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पूछ लिया तो उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर स्पेस कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। क्या क्या? गिल्स, लंग्स, स्किन। स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है इसको क्या है, किस किस्म का रेस्पिरेशन बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको। और एक बोला क्या? बाकोफेरेंजियल कैविटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये होता है। यहां तक अगर बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई पॉइंट में एक्स्ट्रा स्ट्रेस या फिर कुछ देना है तो बताओ। बताओ
क्या है? क्लियर सर। तुम लोगों को क्या 2 बार 3 बार करके बोलना पड़ता है क्या? रिस्पॉन्ड करना है? हाँ, कुछ पूछ रहा हूँ। यहाँ पे जो बैठा है ना, तुम लोगों को जो क्लास लेता होगा ना, तो कुछ डिफरेंस होगा तुम्हारे में और जो भी क्लास लेता होगा यहाँ पे। तो अगर वो कुछ पूछता है तो जवाब नहीं देने का मतलब है कि तुम लोग खुद को ज्यादा कुछ समझ गए हो, या फिर जो पढ़ा रहा है उसको कुछ नहीं समझते हो, और दोनों ही काफी हानिकारक है। तो कोई पूछता है यहाँ पे कि क्या चीज में प्रॉब्लम है अभी तक, ये बताओ कि कौन सा पॉइंट में स्ट्रेस देना है वो बताओ, तो उसका आंसर देना चाहिए मुंह से, टाइप करके नहीं, क्योंकि मैं ये टाइप करके पढ़ा नहीं रहा हूं यहाँ पे। हाँ, So can you repeat bicondylic? डाइकॉन्डाइलिक। डाइकॉन्डाइलिक का मतलब है हम लोगों में मोनोकॉन्डाइलिक है, मतलब एक ही ऑक्सीपेटल कॉन्डाइल है। अगर एक ब्रेन है, ये इसमें क्या बोला मैं, ये एक ब्रेन है, राइट? दिस इज अ ब्रेन, दिस इज द ब्रेन। तो ये ब्रेन से क्या होता है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक जहां से कनेक्शन होता है उसमें एक छेद होता है, उस छेद का नाम है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। हम लोगों में ये छेद एक ही है, तो इसलिए हम लोगों को बोलते हैं मोनोकॉन्डाइलिक। लेकिन फिशेज एम्फीबियंस में ये जो कॉन्डाइल है ये 2 है, तो इसलिए बोलते हैं इसको डाइकॉन्डाइलिक। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को जो कनेक्ट करता है, जो छेद। क्लियर? ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं हार्ट। Amphibia has 2 parts, no head and trunk. क्या? Class Amphibia has bodies divisible into 2 parts, as the head and trunk. हाँ, तो क्या हुआ? मैं क्या करूं? वो तो मैं कुछ बोला ही नहीं अभी। मैं बोलना क्या चाहती है, मतलब व्हाट इज द थिंग? क्या बोलना चाहती है? अब अजीब बच्चे हैं तो ये जिंदगी में ऐसा बच्चा मैं नहीं पढ़ाया हूँ। फर करके कुछ बोल देगा, कुछ ये करके फिर चुप। पागल है मतलब नॉर्मली क्या मतलब, दिमाग सही चलता है? हाँ, क्या पूछ रहा था, क्या बोल रहा है? अरे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था? Here, उसके बाद होता है हार्ट। हार्ट कैसा होगा इसका? हार्ट बेसिकली एम्फीबियन का 3 चेम्बर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हार्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। 3 चेम्बर में क्या क्या होगा? इसमें 2 ऑरिकल्स होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। दैट मेक्स 3 चेम्बर्ड हार्ट। और इसमें भी जैसे कि हम लोग पढ़े थे, साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट रहेगा। इसमें क्या रहेगा? साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस, ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और इसका एरिथ्रोसाइट कैसे होंगे, इस पे भी क्वेश्चन आता है। सॉरी, बोलो। है ना?
हाँ, जोर से बोलो थोड़ा। क्या पूछ रहे हो? बताओ क्या पूछ रहे हो? उनका साइट्रियोसिस होता है ना। कोनस आर्टेरियोसस, साइनस वेनोसस दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। क्या है इसमें, क्या दिक्कत है पॉइंट में? क्या दिक्कत है पॉइंट में? क्या दिक्कत है पॉइंट में? तो मैं यहाँ पे चाइनीज में कुछ बोला? कोनस आर्टेरियोसस को ही तो बोलते हैं ट्रंकस। क्या है क्या प्रॉब्लम है? Anyways, I don't want to waste my time. एरिथ्रोसाइट कैसे होंगे इसका? नॉर्मली इसका एरिथ्रोसाइट का शेप होता है ओवल एंड इट इज न्यूक्लिएटेड, ओवल शेप्ड एंड न्यूक्लिएटेड, और इसमें 2 पोर्टल सिस्टम रहता है और जो काफी अच्छा डेवलप्ड होते हैं। क्या पोर्टल सिस्टम होता है? एक को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और एक होता है रेनल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम वर्ड का मतलब क्या है? पोर्टल सिस्टम वर्ड का मतलब क्या है? What do you mean by the word portal system? ये कंप्लेन कर सकता है कि कोई गुस्सा करके क्लास मिडिल में से चला जाता है। अगर मैं कंप्लेन कर दूं तुम लोगों के बारे में, यहाँ पे बैठ के सब टाइम पास करते हो, कैसा लगेगा? कुछ क्वेश्चन करता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, वहां पे चुपचाप बैठे रहते हो और अपने हिसाब से वहां पे मोबाइल में क्लिक करके क्वेश्चन थ्रो अप करते हो यहाँ पे, तब कैसा लगेगा? पोर्टल सिस्टम वर्ड का मतलब क्या है? क्या? What do you mean by portal system? I am not going to proceed further until and unless I am not getting an answer of this. idea Transport. about this. पोर्टर का मतलब क्या है? जब स्टेशन में उतरता है, तेरे हाथ में अगर बहुत सारा लगेज है तो कूली को बुलाता होगा और वो कूली वो चीज लेके तेरे डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुंचाता होगा। मतलब सीधा बात है, कोई चीज तू अकेला लेके नहीं जा रहा है, किसी का हेल्प लेके जा रहा है। दैट इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। इज इट क्लियर? हेपेटिक और रेनल क्या है? हेपेटिक वेन, क्या क्वेश्चन है? हेपेटिक और रेनल क्या होता है? हेपेटिक का मतलब है लीवर, एनीथिंग विच इज एसोसिएटेड विद लीवर। रेनल का वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग विच इज एसोसिएटेड विद किडनी। क्लियर? क्लियर। ओके, तो इसके किडनी के बारे में पूछ देखते हैं। इसका किडनी क्या होता है, वही तुमको अगर डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये मेसोनेफ्रिक है या मेटानेफ्रिक है। इसका किडनी होता है जो, दिस इज ऑल्सो मेसोनेफ्रिक। दैट मीन्स नॉट वेल डेवलप्ड। डेवलप अगर होता तो पोर्टल सिस्टम का जरूरत नहीं पड़ता। मेटानेफ्रिक अगर होता तो पोर्टल सिस्टम, हम लोगों का मेटानेफ्रिक है, हम लोग का रेनल पोर्टल सिस्टम नहीं। हम लोगों में 2 पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम विच इज लीवर टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और एक होता है कि
हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमस के साथ एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ जो कनेक्शन है वहां पे एक पोर्टल सिस्टम है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो ये चीज रहा तुम्हारा किडनी के बारे में। यूरिनरी ब्लडर इसमें प्रेजेंट रहेगा, क्या लगता है? यूरिनरी ब्लडर इसमें रहेगा? यस सर। कि ऐसे करके पता चला यूरिनरी Is ब्लडर present. रहेगा? क्योंकि पहले ही मैं बोला था इसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट का सिंगल ओपनिंग है जिसका नाम है क्लोका। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट दे हैव यूरिनरी ब्लडर, राइट? ठीक है, इट इज प्रेजेंट। थर्ड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है, जो लार्वा या टेल्ड एम्फीबियंस होती है, जिस एम्फीबियन का पूंछ होगा, लार्वा एंड टेल्ड एम्फीबियंस, जिस एम्फीबियन में टेल्स होंगे, इसमें क्या होगा? टेल्ड एम्फीबियन का एक एग्जांपल तुम लोग को जानना जरूरी है जिसका नाम है सैलामेंडर। ठीक है, तो इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये है एमोनोटेलिक। क्या है? एमोनोटेलिक। एमोनोटेलिक वर्ड का मतलब क्या है? The waste is mainly ammonia. द वेस्ट इज एमोनिया। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फिर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में आएगा तो क्या देगा? इसमें टिक मारेगा, एमोनिया में मारेगा। ठीक है, लेकिन क्यों मैं बोला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एमोनोटेलिक भी है और यूरियोटेलिक भी है। कैसे करके? जैसे फ्रॉग एंड टोड ये दोनों यूरियोटेलिक है। यूरियोटेलिक का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय Where is the यूरियोटेलिक? waste? व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट? यूरिया। एंड यूरिकोटेलिक का मतलब क्या है? यूरिक एसिड होगा जो मेन एक्सक्रीटरी है। ठीक है, तो ये होगा, इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, ये एमोनोटेलिक भी हो सकता है, यूरियोटेलिक भी हो सकता है। तुझे अगर क्वेश्चन में पूछा एम्फीबिया कैन बी और उसमें ऑप्शन दे दिया एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, बोथ 1 and 2, तो आंसर क्या होगा तेरा? आई रिपीट द Can क्वेश्चन ureotelic? ना, इट इज बोथ एमोनोटेलिक, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ये एमोनोटेलिक भी हो सकता है, यूरियोटेलिक भी हो सकता है, यूरिकोटेलिक नहीं होता है ये। सो 1 and 2 ऑप्शन इज राइट। क्लियर? ओके, इसका ईयर्स के बारे में बात करते हैं। कान बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हम लोगों में कान का कितना पार्ट है ह्यूमंस में? बोल, तेरा कान का कितना पार्ट है? एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर, इंटरनल एयर, राइट? Three है ना? parts. Yes, sir. एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल। लेकिन इन लोगों का ईयर में थोड़ा डिफरेंट ही है। इसमें 2 ईयर्स रहता है, ईयर्स का 2 पार्ट होता है, मिडिल एयर एंड इंटरनल एयर। इसमें सिर्फ 2 पार्ट रहते हैं, मिडिल एंड इंटरनल। ठीक है, इसका ईयर में टिम्पैनम होता है कि नहीं? टिम्पैनम होते हैं इसमें। टिम्पैनम क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टिम्पैनम? Is an organ that reaches the ear. इट इज एन ऑर्गन Eardrum. दैट, ईयर ड्रम होता है, उसको बोलते हैं टिम्पैनम। Ear. और हाँ, हम लोगों में कितना ईयर बोन्स होते हैं, ईयर ऑसिकल? हम लोगों में 3, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। लेकिन इसमें एक सिंगल ईयर ऑसिकल होता है, एक ही ईयर बोन्स होते हैं, सिंगल ईयर ऑसिकल, सिंगल ईयर ऑसिकल। और वो सिंगल ईयर ऑसिकल का नाम क्या है? कॉलुमेला ऑरिस। क्या नाम है इसका? कॉलुमेला ऑरिस। इसका 3
ईयर ऑसिकल्स या ईयर बोन्स नहीं होते हैं। क्लियर? इधर तक क्लियर? Yes, sir. Clear. और एक चीज यहाँ से पूछने वाला चीज है जो पहले मैं मेंशन कर चुका था, क्रेनियल नर्व्स, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, राइट? इसमें क्रेनियल नर्व्स कितना रहेगा एम्फीबियंस में? याद करके देखो, मैं जब बोला था फिश और एम्फीबियन के बारे में तो क्रेनियल नर्व्स कितना बोला था? फिश के बारे में कितना बोला था? 10। तो इसमें भी 10 पेयर्स होंगे, 10 pairs. इसमें भी 10 पेयर्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स किसका, कौन सा नर्वस सिस्टम का अंतर्गत है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर पूछते हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दिखा देता हूं, देखो ध्यान से देखो। ये स्केलेटन दिख रहा है? अबे दिख रहा है कि नहीं बता? Yes, sir. दिख रहा है। हाँ Sir. हाँ, तो ये क्या है? ब्रेन, ब्रेन बॉक्स, Brain. राइट? ब्रेन बॉक्स है, ब्रेन नहीं, इसका अंदर ब्रेन रहता है, इसे क्रेनियम बोलते हैं। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, राइट? Yes, sir. राइट? तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन मिलके क्या बनाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट? ठीक है, ये जानता Yes, है ना, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलके क्या बनाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बाहर से, पेरिफेरल का मतलब क्या है? बाहर, अंदर नहीं, बाहर से जो नर्व कनेक्शन होगा उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो हाउ कैन यू डिफाइन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? बोलो। द नर्व which attaches brain and spinal cord externally, सही है ना? Yes, sir. राइट? यही बोल सकते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वही है। ठीक है, तो ये हो गया था तुम्हारा टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एम्फीबिया। बाकी है क्या एम्फीबिया में? उसका एग्जाम्पल जो मोस्टली कमिंग इन एग्जाम में आता है, कौन कौन सा एग्जाम्पल्स, वो मैं एग्जाम्पल्स अभी मेंशन करूंगा। एम्फीबिया का एग्जाम्पल, इससे बाहर एग्जाम्पल पढ़ना मत। एग्जाम्पल्स, इस एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा देख लेते हैं। पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो है सैलामेंड्रा। सैलामेंड्रा को मैं क्या बोला था? टेल्ड एम्फीबियन बोला था, राइट? बोला था तो इसमें टेल होगा। अरे बोला था कि नहीं बोला था? Yes. और टोड, और होगा फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? राना टाइग्रीना। ठीक है, और क्या होता है? हाइला। कब है? क्या? टोड का होता है बुफो। का साइंटिफिक है ना? लिखा तो बुफो। फ्रॉग का होता है राना टाइग्रीना, टोड का होता है बुफो, और हाइला का होता है, हाइला का जो कॉमन नेम है ये है, इसको बोलते हैं ट्री फ्रॉग, जो फ्रॉग पेड़ पे चढ़ सकता है, ट्री फ्रॉग। और एक होता है, इसमें कोई पैर नहीं होता है, देयर इज नो लेग्स ऑफ दिस एम्फीबियन क्लास, एंड दैट एम्फीबिया इज नोन एज इक्थायोफिस। इक्थायोफिस, दिस इज कॉल्ड एज एपोडा। एपोडा का मतलब क्या है? ए मीन्स एब्सेंट, पोडा का मतलब लिम्स, मतलब लिम्स नहीं रहेंगे, वो है एपोडा। क्लियर? इससे बाहर एग्जाम्पल sir. मत Clear. पढ़ो, इससे बाहर एक एग्जाम्पल मत पढ़ो। नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल यू आर सपोज टू स्टडी। जितना करा रहा हूं उतना ही करो, काफी होगा, काफी से ज्यादा ही I have होगा। some doubts from cyclostomata. सम डाउट्स फ्रॉम
cyclostomata class. क्लास साइक्लोस्टोमाटा, क्या प्रॉब्लम है उसमें? Sir, cyclostomes are marine but migrate for spawning. What is meant spawning? स्पॉनिंग का मतलब अंडा देना। स्पॉनिंग का मतलब होता है अंडा देना। साइक्लोस्टोमाटा कहाँ पे रहता है बता? Water. अबे बता। अबे Fresh वाटर, water. कौन सा वाटर? Marine. फ्रेश वाटर में रहता है ना, लेकिन अंडा देने के लिए वो जाता है मेरीन वाटर में, सॉल्ट वाटर में। इसको माइग्रेशन बोलते हैं। स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट करता है। और ये किस्म का फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर में जब जाता है तो उसको बोलते हैं एनेंड्रोमस माइग्रेशन। और उल्टा होगा, सॉल्ट वाटर से स्पॉनिंग के लिए जब फ्रेश वाटर में, उसको बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है? Out from chondrich thighs. हाँ बोल, कॉन्ड्रिच से क्या डाउट है? Sir, electric organs. ठीक? क्या? Electric organs. इलेक्ट्रिक ऑर्गन, सही बोला? सही बोला कि नहीं रे? Sir, हाँ, क्या इलेक्ट्रिक ऑर्गन, क्या मतलब क्या है, क्या बोल सकता, मतलब क्या जानना क्या चाहता है? बहुत कुछ चीज है, क्या जानना चाहता है? क्या है मतलब इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक ऑर्गन बेसिकली एक सेल होता है, उस सेल का नाम है इलेक्ट्रोसाइट्स। ठीक है? एक के बाद एक रोज में आता है, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, ऐसा करके। जैसे इलेक्ट्रिक ईल होता है ना, उसमें ये इलेक्ट्रोसाइट्स रहते हैं। ठीक है? और उसमें मोटर न्यूरॉन अभी मैं इसीलिए तो नहीं बताना चाह रहा था। उसमें मोटर न्यूरॉन का कनेक्शन होता है। जैसे ही उसको तू टच करेगा ना, जैसे बिजली का झटका लगेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। इट कंटेन्स इलेक्ट्रोसाइटिक सेल्स। हुआ? Then sting. ठीक? Sting. स्टिंग रे होता है एक। स्टिंग क्या पूछ रहे हैं? क्या स्टिंग, क्या बोलूं? स्टिंग रे के बारे में क्या जानना चाहता है? Poison sting क्या होता है? Poison sting. पॉइजनस स्टिंग, उसमें न्यूरोटॉक्सिन्स रहते हैं। पॉइजनस स्टिंग्स में न्यूरोटॉक्सिन रहता है, किसी के अंदर अगर घुस जाता है तो नर्वस सिस्टम को डिसेबल कर देता है। द पर्सन हु इज गॉट स्टंग बाय अ स्टिंग रे, एंड व्हेन द न्यूरोटॉक्सिन एंटर्स इट्स बॉडी सिस्टम, it affects the nervous or the neuronal system of its body, and if treatment is not done within 20 minutes of time, the patient can encounter absolute trauma या कोमा में भी जा सकता है। हुआ? क्या? Clear. हाँ, सर वो सर गैनॉइड्स क्या होता है? क्या क्या क्या? गैनॉइड स्केल्स। गैनॉइड तो स्केल्स होता है ना, फिश में रहता है, बोला। ठीक है? एक स्मॉल रिजिड प्लेट की तरह होता है, बाहर रहता है, एक्सोस्केलेटन में रहता है, प्रोटेक्टिव स्केल होता है ये एक्चुअली। कभी कभी ये भी देखा गया है गैनॉइड स्केल में कि लाइट रिफ्लेक्शन जब उसका स्केल में पड़ता है तो उसका कलर चेंज होता है, तो कैमोफ्लाजिक एक्टिविटी भी होता है। ये सब इतना जानना जरूरत नहीं है, जो भी पूछ रहे हो जाइए। इसका शेप के बारे में पूछ सकते थे, इसका शेप कैसा होता है, जो पहला आता था क्वेश्चन में लेकिन अभी नहीं आता है। इसका शेप होता है रोम्बॉइड शेप, रोम्बस होता है ना, रोम्बस पढ़ा है ना मैथ्स में? रोम्बस तो पढ़ा होगा मैथ में। Yes, sir. सर पढ़ा है। Yes, sir. हाँ, तो वो रोम्बॉइड शेप होता है गैनॉइड स्केल।
ठीक है, कंफ्यूजन है। क्या है? All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. ऑल All vertebrates are chordates, but all chordates ऑल are not vertebrates. भाई रुक जाओ, ऑल कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स बोल रहा है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्वेश्चन ये है, यही है ना? सर यही है, कंफ्यूजन है इसमें। कंफ्यूजन कुछ नहीं है इसमें। सब वर्टिब्रेट्स को हम लोग कॉर्डेट बोल सकते हैं, लेकिन सब कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट नहीं बोल सकते हैं। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन है नहीं समझ। अगर कॉर्डाटा का फाइलम कॉर्डाटा का अगर तू कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने जाए तो कौन कौन सा चीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर में तू देखेगा, मुझे बता। क्या देखेगा? नोटोकॉर्ड देखेगा? कॉर्डेट्स का बोल रहा हूँ, नोटोकॉर्ड देखेगा? हाँ या ठीक यस। है। फैरिंजियल गिल स्लिट देखेगा? हाँ यस। लेकिन वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड की जगह क्या होता है? वर्टेब्रल कॉलम। हाँ, तो फिर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया ना? हाँ हाँ, तो इसीलिए बोला जाता है ऑल वर्टिब्रेट्स को कॉर्डेट बोल सकते हैं, सब कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कॉर्डेट्स में Understood. नोटोकॉर्ड होंगे। हाँ ठीक है। और ओके। और किसी का कुछ? स्केल्स किसमें रहते हैं? क्या होता है? टूथ शेप स्केल्स। टूथ स्केल? यस। ये क्या बोला है? टूथ शेप स्केल्स। टूथ स्केल्स? अच्छा, टूथ शेप स्केल जो होता है यस सर। ये है ना? यस सर, वो किसमें रहते हैं? टीथ स्केल्स एक डर्मल या डेंटिकल्स होते हैं जो मतलब दोनों जॉ पे रहता है, बोथ जॉ कैल्सिफाइड होते हैं ये। ठीक है, तो बेसिकली अगर तू बोलता है टूथ स्केल्स ये कैल्सिफाइड, मतलब इस स्केल से ही दांत का भी मतलब डेंटाइन भी आया है इसमें, टूथ स्केल्स में। टूथ स्केल से इनफैक्ट स्केल से ही टीथ इवॉल्व हुआ है एक्चुअली। ठीक है सर वो ग्रुप में पोस्ट किया था क्वेश्चन, तो उसका स्केलेटन कैसे आया? क्या 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 नहीं दिया? वो ग्रुप में एक क्वेश्चन वो आज कल के टेस्ट में आया था, तो उसका आंसर एंडोस्केलेटन कैसे आया? क्या एंडोस्केलेटन कुछ सुनाई में दे रहा था, बस बाकी का कुछ सुनाई में नहीं दे रहा है। इसका आंसर की क्या आ गया? मैसेज डालिए यहाँ पे, मैसेज डालिए इधर पे, मैसेज कर। क्या बोल रहा है वो सुनाई में नहीं दे रहा है। आई हैव पोस्टेड क्वेश्चन ऑन ग्रुप, हाउ इट्स आंसर इज एंडोस्केलेटन। क्या क्वेश्चन पोस्ट किया था भाई ग्रुप में? हाँ क्या क्वेश्चन किया था? क्या is not a characteristic unique to all member of phylum Chordata. Not unique, तो सभी आएगा। नोटोकॉर्ड आएगा, डॉर्सल हॉलो नॉर्थकॉर्ड है, वेंट्रल हार्ट है, वर्टिब्रेट है। एंडोस्केलेटन इज नॉट एन यूनिक फीचर। सब में एंडोस्केलेटन कहाँ पे होगा? यही क्वेश्चन था ना तेरा? राइट और रॉन्ग? है ना, यही क्वेश्चन था तो तेरा।
you please सब में revise working- the terms endoparasites and ectoparasites? ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ आ गया। हाँ तो एक्टोपैरासाइट जो चीज है, एक्टोपैरासाइट बेसिकली आउटसाइड द बॉडी रहता है। जैसे कुत्ते देखे हैं, वो बाहर घूमते होंगे कुत्ते, देखा है ना, उसमें बॉडी लाइस या टिक्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहता है। जैसा हम लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में एक एंडोपैरासाइट है जिसका नाम है एशेरेशिया कोलाई, एक बैक्टीरिया है, वो एक एंडोपैरासाइट है। सिम्बायोटिक एंडोपैरासाइट है वो, कोई खराब ही नहीं करता है बट प्रेजेंट है। हुआ? Clear. और मतलब कुछ? होता है sessile. हाँ Phylum Coelenterata. They are aquatic, mostly marine, sessile. कोलेंटेरेटा ना सिलेंटेरेटा? सर सिंपली Coelenterata निडारिया बोलते ले हैं। लो। sessile मतलब क्या? सेसाइल मतलब जो हिल नहीं सकता है, मोबाइल नहीं है। Sir, it's non-motile, yes. इमोबाइल है। एक मैकेनिज्म होता है अपने जगह से, जब वो हिलता है तो उसको बोलते हैं कि वॉल्ट मूवमेंट। अपना मुंह ऐसा करके अगर खड़ा है तो ऐसा करके बेंड करेगा पूरा, फिर पीछे वाला जगह से उठ जाएगा, फिर से बेंड करेगा, तो एक जगह से ऐसा करके वॉल्टिंग करके जाता है, जो वॉल्टिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। Animals phylum Nidaria are the first to exhibit the tissue level organization, right or wrong? तुझे क्या लगता है, क्या पढ़ा था, टिश्यू लेवल कहाँ से आया? जो पढ़ाया हूँ, अगर क्लास 6 से करा होगा, नोट्स देखा होगा, तो ये सब वाहियात क्वेश्चन नहीं पूछता। कहाँ से आया था टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन? कहाँ से आया था? पलट के देख, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आया था? देख 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 जल्दी देख। के बारे में Tissue नहीं level पूछ रही हूँ, जनरल पूछ रही हूँ। कि जनरल ऐसा टाइम पास के लिए पूछना है या फिर मेरा क्या जानना है कि नहीं जानना है, वो अलग बात है। पढ़ा था ना ये। इन जनरल पूछ रहा है का मतलब क्या, टाइम ज्यादा है तेरे पास? होगा, मेरा नहीं है। देख पहले नोट्स को निकाल, कहाँ से टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आया, देखो पहले टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आया। देखो नहीं मिला, मिला के नहीं मिला? मिला के नहीं मिला? मिला के नहीं मिला? कहाँ से आया पता? टिश्यू लेवल कहाँ से आया? तो जानता है, वो जान के मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है ये देखने के लिए कि मुझे पता है कि नहीं, कि कहाँ से आया। ये पूरा मेंशन है नोट्स में, सिलेंडर से पहले टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। चुपचाप बैठे रहेगा ना, बहुत गाली खाएगा, मैं बोल रहा हूँ। तो बेकार लगता है मुझे ये क्लास लेना, चुपचाप बैठा रहता है।
कहाँ से मिला? लिखा है कि नहीं दिखा? अजीब इंसान है। तो क्या नाम है तेरा? नाम क्या है? हो गया खत्म? किसी को कुछ और जानना है? Anyone need to know anything else? Someone grabbed your throat or something else? So I send a feedback of yours right now. These are absolute bunch of idiots who start taking my classes over here without responding to anyone. And when I'm asking them questions, they are simply sitting duck on their asses and doing nothing. All right? So that will be it for it. Maintain yourself. I'm not going to take your classes from tomorrow onwards, idiots.